ماہ محرم شرعی ناحیے سے بھی اور تاریخی ناحیے سے بھی بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہی کہ اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں سے ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ 4 مہینے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، یعنی 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے، ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے ہر وقت اور ہمیشہ بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ تو ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی دوسری شرعی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور یہ فضیلت بتائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کسی مہینے کے نفل روزے زیادہ سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں تو یہی ماہ محرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشورہ کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے جو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اہل کتاب اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کو ملا کر یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت حدیث میں اللہ کی جانب کی۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب محرم کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے بیت اللہ کہتے ہیں آپ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ زمین میں جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ویسے ہی 12 مہینے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب خاص طور پہ محرم کو کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے اس مہینے کی حرمت، عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات، یہ اس مہینے سے بہت ساری تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ مہینہ بہت سارے عظیم واقعات کا شاہد ہے۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہیں۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی، اور یہ یادیں وابستہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ آپ کو معلوم ہے حضرات، یہ فرعون مردود، یہ فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم میں پہنچا۔ اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا تھا، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا،
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिरौन ने वक्त और इंसानी तारीख के जालिम और जाबिर की हलाकत पे शुक्रगुजारी का हक जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को था, इस फिरौन वक्त की हलाकत और बर्बादी पे शुक्रगुजारी का हक हमें भी हासिल है। आपने भी रोजा रखा और आपने कहा कि यहूद की मुखालफत करो और 2 दिन रोजे रखा करो। हजरात, माह मुहर्रम की एक और खुसूसियत यह भी है कि मुहर्रम का महीना जब आता है तो यहां से नया इस्लामी साल शुरू होता है, जिसे हम हिजरी साल कहते हैं। हर मुहर्रम से एक नया हिजरी साल शुरू होता है। माह मुहर्रम जब भी आता है तो हिजरत के उस वाक़ये की याद दिलाता है जो अहदे नबूवत का एक अजीम तरीन वाक़या है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जब इस्लामी कैलेंडर शुरू करने की बात आई, हजरत उमर ने मशवरे किए सहाबा से कि इस्लामिक कैलेंडर का आगाज कहां से किया जाए। बाज़ों ने कहा प्यारे नबी की विलादत से किया जाए, जब आप पैदा हुए वहां से इस्लामिक कैलेंडर शुरू किया जाए। बाज़ों ने कहा प्यारे नबी की बेसत से इस्लामिक कैलेंडर शुरू किया जाए, जिस दिन आप 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए, रसूल बनाए गए, वहां से इस्लामिक कैलेंडर शुरू करेंगे। लेकिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बड़े दूर अंदेश इंसान थे, साहिब फिरासत इंसान थे, साहिब बसीरत इंसान थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने विलादत से इस्लामिक कैलेंडर शुरू नहीं किया, विलादत नबवी से, बेसत नबवी से इस्लामी कैलेंडर शुरू नहीं किया। उन्होंने इस्लामी कैलेंडर के आगाज करने के लिए हिजरत को उन्वान बनाया। वो वाकया जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी के अजीम सहाबा अल्लाह की खातिर मक्का छोड़कर उन्होंने मदीना हिजरत की, सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ लुटाकर, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत कुर्बान करके, अपने कारोबार को कुर्बान करके, अपने घर बार को कुर्बान करके, अपने महबूब वतन को कुर्बान करके, सब कुछ कुर्बान करके मदीना एक ऐसी नई जगह गए, नए शहर में गए जहां उनका अपना कोई न था, वहां ना कोई कारोबार था उनके पास, वहां ना कोई बिजनेस था उनके पास, वहां ना कोई उनका अपना कोई करीबी रिश्तेदार था। मक्के में जो अमीर से अमीर तरीन सहाबा थे, मदीना पहुंचकर सबके सब सिफर हो गए, सबके सब गरीब हो गए, फकीर हो गए, कंगाल हो गए। हिजरत एक ऐसी कुर्बानी है जो अपने अंदर दसियों कुर्बानियां रखती है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी कैलेंडर का आगाज करने के लिए हिजरत को उन्वान बनाया ताकि आने वाली नस्लें हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इन कुर्बानियों को कभी फरामोश न कर सके। वल्लाह कोई सहाबी हिजरत कर चुका है, बीवी मक्के में है, कोई सहाबिया हिजरत कर चुकी है, शोहर मक्के में है, कोई माँ बाप हिजरत कर चुके हैं, औलाद मक्के में है, कोई औलाद हिजरत कर चुकी है, माँ बाप मक्के में है, कोई दोस्त हिजरत कर चुका है, दोस्त मक्के में है, कोई भाई हिजरत कर चुका है, भाई मक्के में है, कोई बहन हिजरत कर चुकी है, बहन मक्के में है। अल्लाहु अकबर। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने ईमान की हिफाजत की खातिर, अपने दीन की हिफाजत की खातिर, अपने अकीदे की हिफाजत की खातिर तन मन धन जिस जिस चीज के वो मालिक थे, हर चीज की उन्होंने कुर्बानी दी। और हिजरत का सफर भी उनके लिए कोई आसान सफर न था, वो कोई आसान सफर ना था। ऐसा सफर था जहां कदम कदम पे जान के लिए खतरात थे, और इन सारे खतरात का मुकाबला करते हुए हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हिजरत की थी। अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी उम्मे सलमा को लेके निकले हिजरत करने के लिए। ससुराल वाले आ गए, कहा अबू सलमा तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, पर हमारी खानदान की लड़की उम्मे सलमा इसको नहीं ले जा सकते, जाओ छोड़ के, जाना हो तो हमारी लड़की को छोड़ के जाओ। अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु तने तन्हा मक्का पहुंच गए, बीवी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर। कितनी बड़ी बात थी। हजरत सुहैब रोमी रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की। कैसे हिजरत की? मक्का आए थे, बहुत कमाए थे, बड़ा माल था, हिजरत के लिए निकले हैं। मक्के वालों ने कहा हिजरत करनी है करो, पर ये पैसा यहां कमाया हुआ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। हजरत सुहैब ने कहा तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक,
तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक, ले लो ये पैसा, पर मुझे हिजरत करने दे दो। पैसा लौटा दिया और सीधे रवाना हो गए मदीना। प्यारे नबी के पास पहुंचे, सारा माजरा सुनाया, कहा कि अल्लाह के नबी जो कुछ कमाया था सब कुछ मक्के में लुटा के आया हूं। प्यारे नबी ने फरमाया रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब। आपने फरमाया सुहैब तुम्हारी तिजारत कामयाब हो गई, तुम्हारी तिजारत कामयाब हो गई, तुम्हारी तिजारत नफा बख्श हो गई। दीन का रास्ता ये ऐसा रास्ता है जो इस रास्ते में जितना गवाएगा वो उतना पाएगा, जो इस रास्ते में जितना गवाएगा उतना पाएगा, जितना खोएगा उतना पाएगा। हजरत सुहैब सब कुछ गवा के गए और इस गवाने को प्यारे नबी नफा बख्श तिजारत से ताबीर कर रहे, रबिहा सुहैब, सुहैब। बाज़ मुफस्सिरीन के बकौल ये आयत उन्हीं के सिलसिले में नाजिल हुई, वमिन अन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। तो हजरत सहाबा की अजीम कुर्बानियां थी हिजरत में, इसीलिए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेश निगाहों ने इस्लामिक कैलेंडर का आगाज करने के लिए उसके लिए उन्वान के तौर पर हिजरत का इंतखाब किया, ताकि ये मुहर्रम जब भी पलट कर आए, नया हिजरी साल जब भी शुरू हो, क़यामत तक आने वाली नस्लें हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की इन कुर्बानियों को याद करते रहें, कभी सहाबा की कुर्बानियों को ना भूलें, सहाबा की कुर्बानियों को फरामोश ना करें और इन सहाबा की कुर्बानियों को नमूना बनाकर वो आने वाली नस्लें भी अल्लाह के दीन के लिए जो कुर्बानियां दे सकती हैं देती रहे। इसलिए हजरात हिजरत की फजीलत भी हो उतनी अजीम करार पाई। शुरू होता है इन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और सहाबा के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। आज हमारे सामने बज़ाहिर हिजरत ज़ाहिरी के असबाब तो नहीं है, आज हमें जोग्राफियाई हदबंदियों में महसूर कर दिया गया है, लेकिन याद रखिए हमारे सामने हिजरत बातिनी के दरवाजे खुले हुए हैं, बातिनी हिजरत के दरवाजे खुले हुए हैं। हम शैतान से अल्लाह की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम शिर्क से तौहीद की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम कुफ्र से इस्लाम की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम बिदात से सुन्नत की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम झूठ से सच की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम खियानत से अमानत की जानिब हिजरत कर सकते हैं, हम बदअखलाकी से अखलाक की तरफ हिजरत कर सकते हैं, हम जुल्म और उद्वान से अदल इंसाफ की तरफ हिजरत कर सकते हैं। बातिनी हिजरत जिसे अहले इल्म ने कहा, ये बातिनी हिजरत के दरवाजे तो हमारे सामने खुले हुए हैं। जाहिरी हिजरत अगर हम न कर सकें हालात के तकाजों के पेश नजर, तो बातिनी हिजरत तो हम सब कर सकते हैं, ये जरूर हमें करना चाहिए। माह मुहर्रम हमको ये पैगाम देता है। हजरात, माह मुहर्रम से जो यादें वाबस्ता हैं उनमें से एक बहुत बड़ा वाकया हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का भी है। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु नवासे रसूल इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में मजलूमियत के आलम में शहीद कर दिए गए, जो यकीनन बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है और बहुत बड़ा अफसोसनाक सानिहा है इस्लामी तारीख का कि नवासे रसूल को मजलूमियत के आलम में शहीद किया गया। लेकिन ये एक आजमाइश थी उनकी जिंदगी की, जिस आजमाइश से गुजरकर हम समझते हैं कि वो जन्नत में उस मुकाम के मुस्तहिक ठहरे जिस मुकाम की पेशिंगोई प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में उनके हक में फरमाई थी कि सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे ये तो नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उन्हें जन्नत मिली तो ऐसे ही नहीं मिली, उनकी जिंदगी में ऐसी कुर्बानियां हैं। उनके भाई हसन को देखिए रज़ी अल्लाह अन्हु वारदा, कुर्सी की कुर्बानी देते हैं, हुकूमत तो इक़्तिदार की कुर्बानी देते हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में दस्तबरदार होते हैं, और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हैं। इन कुर्बानियों का नतीजा था कि उन्हें जन्नत में वो मुकाम मिला, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के ये दो सरदार हैं, ये दोनों नवासे रसूल। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इस वाकये को बुनियाद बनाकर उम्मत मुस्लिमा के एक गिरोह ने और उससे मुतासिर होकर बिदाती मुसलमानों ने माह मुहर्रम में बिदात और खुराफात का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर रखा है। मुहर्रम क्या आता है कि मुहर्रम की के आगाज के साथ ही आप देखेंगे मुसलमानों की सफों में, मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों की आबादी में बिदात और खुराफात का एक अंबार।
कितने मुसलमान हैं जो इस मुहर्रम के पहले अशरे को मातम के अशरे के तौर पे मनाते हैं, शोक के तौर पे मनाते हैं। हालांकि इस्लाम का कानून है किसी भी मय्यत के इंतकाल पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन शोक मनाने की इजाजत है। कितना अजीज हो, कितना प्यारा हो अपना, कितना करीबी हो अपना, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन शोक मनाने की इजाजत है। एक बीवी है जिसे कहा गया हाँ शोहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन वो असबाब जीनत से दूर रहेगी, उसे शोक मनाने की इजाजत। यहां तो 14 सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजर गए। हर साल मुहर्रम जब पलट के आता है तो मुहर्रम के पहले अशरे को मातम के तौर पे बनाया जाता। और इसके मज़ाहिर क्या है? मुहर्रम जैसे ही शुरू हुआ काले कपड़े पहन लिए, जो कि गम की अलामत है। मुहर्रम जैसे ही शुरू हुआ, मुहर्रम के पहले 10 दिनों में अपने ऊपर गोश्त हराम कर लिए। प्यारे नबी को भी यह हक न था तहलील और तहरीम का, और ये लोग अपने ऊपर 10 दिन के लिए गोश्त हराम कर लेते हैं। और मुहर्रम जैसे ही शुरू हुआ, जा बजा देखेंगे रास्तों में, बस स्टैंडों में, चौराहों में पानी की सबीलें लगाएंगे कि नवासे रसूल को प्यास से तड़पा तड़पा कर शहीद किया गया, उसके बदले में हम दुनिया को पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है। हमेशा पिलाओ, हर वक्त पिलाओ, सबको पिलाओ। ये मुहर्रम का एहतमाम क्या है? खास मुहर्रम में इसके एहतमाम की क्या जरूरत है? हजरात, सीना कोवी करना, अपने आप को जख्मी करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ विदावल जाहिलिया, वो शख्स हम में से हो नहीं सकता जो मातम करते हुए अपने गालों पे थपेड़े लगाए, अपने गिरेबान फाड़ ले और उसकी जबान भी मातम में शरीक हो जाहिली नारे लगाती रहे, या हुसैन हम न हुए, या हुसैन हम न हुए। अफसोस तो इस बात पर है ये सारे काम अहले तशय्यो के थे, लेकिन देखो कि सुन्नी मुसलमान भी, कितने सुन्नी मुसलमान हैं अहले तशय्यो के फितने से मुब्तला होकर अहले तशय्यो से ज्यादा इन सब बिदातों का एहतमाम ये खुद करते हैं। मुहर्रम क्या शुरू हुआ? वाक़िए करबला को खुतबों में सुनाना, मस्जिदों में सुनाना और रोना रुलाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप मुहक्किकीन की तहकीकात ये हैं, वाक़िए करबला के हवाले से वाइज़ीन जितने वाक़ियात बयान करते हैं अक्सर झूठ का फलंदा है, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। यह अहले तशय्यो से मुतासिर होने का नतीजा है। एक तरफ ये बिदात है जो अहले तशय्यो से मुतासिर होकर मुसलमानों में आई है कि मुहर्रम के पहले अशरे को मातम के तौर पर मनाना, दूसरी तरफ इसका रद्द अमल है, इसका रिएक्शन है, जिसको तारीख में नवासिब का नाम दिया गया। नवासिब किसे बोलते हैं? जब शिया ने अहले बैत की मोहब्बत में गुलू किया तो वहीं उनके रद्द-ए-अमल और रिएक्शन के तौर पे एक फिरका वजूद में आया जिनको नवासिब कहा गया, नासिबी कहा जाता। वो शख्स जिसे अहले बैत से अदावत होती है, अहले बैत से दुश्मनी होती है। और सबसे बड़ा नासिबी तो हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ सबसे बड़ा नासिबी, अहले बैत का दुश्मन था। वो अहलुस सुन्नह वल जमा, मसलक सलफ और मसलक अहलुल हदीस की दावत ये है, ये दोनों इंतहाएं गलत हैं। इफराद भी गलत है, तफरीद भी गलत है। अहले बैत की शान में बेजा गुलू करना भी गलत है, और अहले बैत को शरीयत ने जो मुकाम दिया है वो मुकाम न देना भी गलत है। और मुहर्रम जब आता है ये दोनों ही मज़ाहिर देखने को मिलते हैं, ये दोनों ही तबके उम्मत मुस्लिमा में पाए जाते हैं। एक तबका गम मनाता है तो दूसरा तबका खुशी मनाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको इस माह मुहर्रम की हुर्मत का लिहाज रखकर इस माह मुहर्रम में हर किस्म की बिदात से, हर किस्म की खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।